Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is day 28 of data structures and algorithms, we are going to see a algorithm of matrix exponentiation. Okay, so it is kind of maths algorithm you can say, ठीक है, but ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ आती है हमारी DP में, और since we have already learned all the data structures, all the important data structures, so we are bringing now algorithms. But before starting this video, let's just see what is Newton School. So basically Newton School is an e-learning platform which provides you different services, and the first and most important is placement training. So what they do is they will train you for 6 months and they will teach you for 6 months with front-end development, back-end development and different frameworks and HTML, CSS, JavaScript, and they will make you a full stack developer, a complete full stack developer in 6 months. Not only this, after that they will also get you placed in different companies, okay, like Snapdeal, Teachment, First Choice, Lenskart, Xiaomi. So they have tie-up with almost 300 companies of India, in which they will firstly make you a full stack developer in 6 months, and after that they will get you placed. Minimum CTC that they try to provide you is 5 lakh, so it is also a good thing. If you want to know more about this program, just come to newtonschool.co and check their pay after placement program, under which you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies. Okay, so it is also a good thing. Second program they have for you is Launchpad Initiative. Like if you are unsure that you have to take Newton School program or not, you can just go for free learning. Okay, so what they do is they provide you free courses for different subjects like front end, back end, then आपको मिलेगा यहाँ पे core subjects, programming, data structures and algorithms. So what you can do is you can just go to newtonschool.co and sign up for free and start learning for free. You will also get course completion certificate. You can also solve quizzes here. You can just use Newton School IDE for coding part. Okay, so they are providing you complete package of learning for free. You can just come to newtonschool.co and check under Launchpad Initiative. Most amazing thing they have for you is their MS degree program. So if you are a working professional and you want to go for MS degree, okay, but you can't afford it or you don't have time to go for MS degree from abroad, okay, so you can just check Newton School MS degree program, under which they have a tie-up with Spain University, that is MIA Digital University, and they will provide you MS degree via online mode. So they will train you for complete 1 year, and after that degree completion they will give you your MS degree from computer science, which is applicable in India as well as in abroad, and via which you can lend a package of up to 40 lakhs. Okay, so if you want to know more about this program, you can just go to the link in description, that is bit.ly hitesh15, or you can also ask me in comment section. I will explain you more about this. Okay, one last thing, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go to YouTube and subscribe this channel. I am posting one video every day so that we can complete data structures and algorithms, and also C++ programming language if you want to learn any programming language, and I have taught you C++ from basic to advanced. Okay, so just refer to this YouTube channel if you haven't done yet. Now let's just begin with our today's video, that is matrix exponentiation. So जैसा कि हमें नाम सजेस्ट कर रहा है मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन. ओके, तो होता क्या है, सपोज यू वांट टू कैलकुलेट, you know what is a matrix. Okay, matrix is a 2D array, you can say. This is a matrix. Suppose this is a matrix of 3 cross 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. ये 3 cross 3 की एक मैट्रिक्स है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन राइट नाउ. तो सपोज आई हैव अनदर मैट्रिक्स 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, and you want to multiply this matrix. ठीक है, सपोज दिस इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स एंड दिस इज बी मैट्रिक्स. ठीक है, और तुम्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ए क्रॉस बी निकालने में तुम्हारी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है. यू नो दैट सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, अब मैं वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा. ठीक है, यू नो इट ऑलरेडी. तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, n क्यूब, वेयर n is
साइज वेयर n क्रॉस n इज साइज ऑफ योर मैट्रिक्स। सपोज अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो 3 क्यूब कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की। कैसे? इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो भी 3 क्रॉस 3 का ही होगा, ठीक है। तो तुम्हें 3 लूप्स लगेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने में, एक तो हर एलिमेंट के लिए इटरेट करने में, ठीक है। और फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता कैसे? सपोज यू वांट टू फाइंड आउट फर्स्ट एलिमेंट, तो उस फर्स्ट एलिमेंट के लिए तुम्हें एक लूप और लगेगा, क्योंकि तुम्हें इसका और इन तीनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो इन दिस वे यू विल हैव, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एन क्यूब। फाइन। अब सपोज वी हैव टू कैलकुलेट वन थिंग नाउ। सपोज you have to calculate a raise n. A raise n you have to calculate. Okay, fine. Now you will say that you will take something like n cross 4, but no. Suppose you have to calculate a1 multiply a1 multiply a1. Okay, so what you will do is, तुम सबसे पहले a1 और a1 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो a और a का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक, और उसमें तुम्हें लगा n क्यूब। फिर तुम a और a स्क्वायर और a का मल्टीप्लाई करोगे और उसमें फिर से तुम्हें n क्यूब लगेगा। फिर a क्यूब और a का मल्टीप्लाई करोगे, उसमें तुम्हें फिर से n क्यूब लगेगा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, तुम्हारी n क्यूब, एंड सपोज यू हैव टू कैलकुलेट a टू द पावर x, तो n क्यूब इंटू x टाइम्स तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है। फाइन। अब x कैन बी वेरी लार्ज, ठीक है, हम n क्यूब तक की कॉम्प्लेक्सिटी तो अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है, बट x कैन बी वेरी लार्ज। सपोज x इज इक्वल्स टू 10 रेज 9, ठीक है, और 10 रेज 18 ऑल्सो। सो इस केस में हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक मेथड आया मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन का, ठीक है, जो तुम्हारा लॉग एन टाइम में ये ऑपरेशन तुम्हें करके देगा, ठीक है। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट a रेज 10 रेज 18। नाउ दिस विल बी डन इनटू n क्यूब, जो कि तुम्हारी मैट्रिक्स की जो भी मतलब उसका साइज है मैट्रिक्स का। सपोज n क्रॉस n है, तो उसका n क्यूब, उसका दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का वो मल्टीप्लाई लॉग ऑफ पावर जो भी तुम कैलकुलेट कर रहे हो 10 रेज 18। ओके, सो इन दिस वे हमें मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन हेल्प करता है। अब कैसे करता है ये हम देखते हैं, एक्सपोनेंशिएशन इन लॉग एन, ठीक है। सपोज तुम मैट्रिक्स ना लेके कोई एक नंबर लो, तुम्हें 2 रेज 18 निकालना है, ठीक है। तो तुम 2 रेज 18 कैसे निकाल सकते हो? 2 रेज 18 को डिवाइड करो 2 में, 2 रेज 9 मल्टीप्लाई 2 रेज 9, ठीक है। अब 2 रेज 18 निकालने के लिए तुम्हें एक नंबर की जरूरत है, दैट इज 2 रेज 9। फाइन। अब 2 रेज 9 निकालने के लिए मैं अगर बोलूं कि मुझे किस चीज की जरूरत है, 2 रेज 4 मल्टीप्लाई 2 रेज 4 मल्टीप्लाई 2, जो कि हमारा ठीक है, हम कर लेंगे, ठीक है। एंड अगर मैं इसी में मल्टीप्लाइज 2 रेज 4 एंड मल्टीप्लाइज 2 रेज 4 एंड मल्टीप्लाई 2 कर दूं, तो ये कितना हो गया 19, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ों की ज़रूरत, एक चीज़ की अभी भी ज़रूरत है, 2 रेज 9 निकालने के लिए मुझे 2 रेज 4 की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं इसको और ब्रेक करूँ तो 2 रेज 2 में आएगा, देन अगेन 2 में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें एक आइडिया लग रहा होगा कि सपोज अगर मुझे पावर x निकालनी है, तो उस पावर x को मैं ब्रेक कर सकता हूँ x/2 में एंड x/2 में। अगेन उसको ब्रेक कर सकता हूँ अगर मुझे x/2 निकालनी है, x/4 में, x/4 में, और इसको भी ब्रेक कर सकता हूँ x/4 x/4, ठीक है। अगेन इसको ब्रेक कर सकता हूँ मैं x/8 x/8 एंड इसको भी x/8 एंड x/8। अब अगर मुझे मान लो x/8 निकालनी है, तो ऑब्वियसली आई विल कंप्यूट इट ओनली वंस, मैं एक बार निकालूंगा और बार बार 4 बार उसका यूज़ करूंगा, 4 बार नहीं, ऑब्वियसली 8 टाइम्स x/8 का यूज़ करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी x/8 यूज़ आएगी, ठीक है। तो एक्सपोनेंशिएशन में यही होता है कि हम कोई एक बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं उसके 2 हाफ्स में, ठीक है, और फिर हम 2 हाफ्स को खाली एक सिंगल टाइम कंप्यूट करेंगे,
ओके, और उसको उन दोनों हाफ्स को यूज़ करेंगे एक बड़ी वैल्यू का आंसर निकालने के लिए। ठीक है, फाइन। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ आता है, ये तुम्हारे डीपी में यूज़ आता है। ये आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलेगा फिबोनाकी। ठीक है, फिबोनाकी ऑफ एन तुम्हें लॉग एन में मिल जाएगा, तो वो चीज़ भी अभी हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। बट राइट नाउ मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, इसी चीज़ का। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट पावर ऑफ एक्स, so what you can do, if x is even तो तुम उसको x by 2 और x by 2 में ब्रेक कर लोगे, और अगर x ऑड है, x इवन है, ठीक है, और अगर x ऑड है तो तुम उसको किस में ब्रेक करोगे, x by 2 और बाद में उसका x से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो एक ऑपरेशन बढ़ जाएगा उसमें, इफ x इज ऑड। ठीक, तो सिमिलरली अब तुम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी देख लो। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन दैट इज a टू द पावर x। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम सिंपली उसको 2 हाफ्स में ब्रेक करोगे। ठीक, फिर x बाई 2 की पावर निकालोगे। ठीक है, फिर उससे x बाई a की पावर x बाई 8 निकालोगे, और जब तक निकालते रहोगे जब तक तुम्हारा x यूनरी नहीं हो जाता, दैट इज 1 नहीं हो जाता। ठीक है, x जैसे ही 1 हो जाएगा वहां पे तुम क्या कर सकते हो, सिंपली a रिटर्न कर सकते हो। तो यहां से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन कैसे हो, ये तुम लोगों को बाइनरी सर्च तुम लोगों ने इतनी बार पढ़ रखा है प्रीवियस वीडियोस में, यू कैन ईजिली फाइंड इट कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग एन है। क्यों, हम क्या कर रहे हैं, हर बार x को x बाई 2 में डिवाइड कर रहे हैं, फिर x बाई 2 को, तो बार बार हम हाफ करते जा रहे हैं, और इस चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने बहुत बार देखी है, दैट इज लॉग एन। मैंने ये लॉग ऑफ एक्स, सॉरी, ठीक है, तो ये मैंने बहुत बार वीडियोस में प्रूफ करके भी बताया है, तो दोबारा नहीं बता रहा मैं। तो दैट्स वाई अगर हमें a टू द पावर x कैलकुलेट करना है, वी कैन डू इट इन log x ऑपरेशन। अब इसका मैं C++ कोड दिखाता हूं तुम लोग को, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स जस्ट गो टू द कोडिंग पार्ट। दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है मल्टीप्लाई, ये क्या कर रहा है, तुम्हारे दो मैट्रिक्स ले रहा है, ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर, यू कैन से मैट्रिक्स, और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये देखो तुम्हारा क्या कर रहा है, n³ टाइम में कर रहा है। आई एम सपोजिंग कि जो मैट्रिक्स A और B है उनकी जो साइज है वो n क्रॉस n है, दैट इज साइज क्रॉस साइज, यू कैन से। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, तुम्हारा साइज क्यूब, O ऑफ साइज क्यूब में तुम्हारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके दे रहा है, कोई दो मैट्रिक्स का जो तुमने फंक्शन में पास किया। नीचे हमारा फंक्शन बना है, ये मेरी आंसर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें मैं a टू द पावर x स्टोर करूंगा। नाउ आई हैव रिटन फंक्शन expo, जिसमें मैं a टू द पावर x कंप्यूट कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा रिकर्सिव फंक्शन होगा, तो ध्यान से समझना कि अगर x इज इक्वल्स टू 1 है, आई कैन सिंपली रिटर्न a। वाई, क्योंकि a टू द पावर 1 इज सिंपली a। ठीक है, और अगर x मेरा 1 नहीं है, तब मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे एक वैल्यू कंप्यूट करनी है a टू द पावर x बाई 2। ठीक है, और ये कंप्यूट करने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपली जो भी इसका आंसर आएगा, सपोज रिजल्ट, तो मुझे रिजल्ट और रिजल्ट का मल्टीप्लाई कर देना है, और वो मेरा मेन आंसर होगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैं वही करूँगा, मैं सिंपली एक्सपोर्ट 2 में क्या स्टोर करवाऊँगा, रिकर्जन फंक्शन कॉल करूँगा यहाँ पे, एक्सपो ऑफ a x बाई 2। ठीक है, तो ये वापस से रिकर्जन फंक्शन कॉल होगा, वापस से ऊपर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे x बाई 4 निकलेगा, फिर यहाँ पे x बाई 8 निकलेगा, और जब तक निकलता रहेगा जब तक x 1 नहीं हो जाता। और जैसे ही हमें बैक ट्रैक करके आंसर मिलेगा एक्सपो 2 का, हम सिंपली क्या करेंगे, आंसर में मल्टीप्लाई ऑफ एक्सपो 2 एंड एक्सपो 2, दैट इज a टू द पावर x बाई 2, a टू द पावर x बाई 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड नाउ वी विल सिंपली चेक कि अगर x हमारा ऑड था, ठीक है, दैट इज x अगर 7 था, तो हमने क्या निकाल लिया है, a टू द पावर 6 निकाल लिया है, उसमें बस a का मल्टीप्लाई और कर दो, तो आंसर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ a टू द पावर 6 मल्टीप्लाई a। ठीक है, तो दिस आफ्टर दिस फंक्शन मेरा लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में a टू द पावर x, a टू द पावर n निकल आएगा। ठीक है, लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में a टू द पावर n कंप्यूट किया मैंने। ठीक है, तो इन दिस वे ये मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन था। ठीक है, विद कोड मैंने समझा दिया।
Now if you have any doubt, you can ask in comment section. Again, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this channel. And if you haven't visited newtonschool.co and haven't checked their pay after placement program, launchpad initiative and MS degree program, just go to the link in description, that is bit.ly hitesh15, and check their MS degree program and pay after placement program. Thank you guys for watching this video.